اس وقت سفر کر رہے ہیں، ایک خوبصورت سفر اپنے شیخ طریقت حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ۔ یوں تو ہم اکثر روحانی سفر حضرت حافظ صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ شیخ کا ساتھ ہونا ہی روحانی سفر ہوتا ہے۔ ابھی بھی ہم ایک روحانی سفر سے گزرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم موقع ہے خوشگوار تقریب کا، موقع ہے ایک پیر بھائی کی شادی کا، ہم اس میں شرکت کے لیے محبوب نگر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اور محبوب نگر روانہ ہونے کے دوران راستے میں اس خوبصورت مسجد میں ہم نے اپنے شیخ طریقت حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی نگرانی میں نماز عشاء ادا کی، اور نماز عشاء کے بعد اب ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ تقریباً ایک بڑا قافلہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور شادی کا موقع ہو یا پھر کوئی دوسرا موقع، حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے مریدین کے ساتھ بے پناہ محبت و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور مریدین بھی اپنے شیخ طریقت سے بے انتہا عقیدت، والہانہ جذبہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے محبوب نگر کے سفر کی طرف۔ تمام جانی مالی بدن مزاحیہ طور پہ بتا رہا ہوں میں، بس الحمد للہ بچے جو ہے نا آنا جانا میرے بچے سے بھی میں آتا میں آنا جانا بچہ ہے تو دعا کی میں الحمد للہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ایک ضروریات پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بس دعا خیر میں یاد کیجیے، بڑی خوشی ملی۔ چلیے امام صاحب میرا کیا کہتے ہیں، کہیں بھی سفر پہ جاتا ہوں سارے مریدین سے کہتا ہوں اگر نہیں دعائیں تو کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ گلبرگہ کا جا رہے ہیں تو راستے میں ایک مسجد سے ہمارا گزر ہوا تو بھی ہم لوگ رکے علم وغیرہ صاحب، اس کے بعد امام صاحب سے مجھے کہا وہ کیا کھانے کے لیے آئی نہیں آئی میں کھا لیا، لیکن کچھ عجیب و غریب ان کی کیفیت دیکھ رہا پھر میں نے ان سے اصرار کر کے بلایا، اور اس کے بعد جب وہ کھانا کھا کے تو میرا ایک معمول ہے، میں کہتا ہوں یار تم اپنا مال اگر صحیح مصرف میں خرچ کرنا چاہتے ہو مدد سے کم کرو گے سب سے بہتر کیا کہتے ہیں عمل ہے آپ، تو میں سب سے کہا کہ لائیے سب لے لیں امام صاحب کے ہاتھ میں چلے گئے، تو میرے گلبرگہ پہنچنے سے پہلے ایک صاحب فون کرے، امام صاحب بولنے لگے کہ میرے اہلیہ کی ڈلیوری ہوئی، اور صدر صاحب کو بولا کہ میں ظہر میں آئے تھے 10,000 روپے ایڈوانس دے دیا، لیکن واقعی کے بہتر کے صدر صاحب نہیں آئے، اور میں شرم کی وجہ سے ٹینشن سے صبح سے کھانا نہیں کھایا، اور شرم کی وجہ سے میں ہاسپٹل میں نہیں جا رہا ہوں، تو یہ بھی گھر نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں صاحب جاتے تک 14-15 ہزار روپے دے دیجیے، پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلا دیے، پھر اس کے بعد جا کے آپ لوگ ذرا کیمرے بند کر دو۔ ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں نیو ٹاؤن محبوب نگر، جہاں پر اس وقت ہم عزیز دکن خادم قوم ملت حضرت حافظ قاری شاہ محمد عبد المقتدر صاحب قریشی چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زیر قیادت ایک نورانی قافلے کے ساتھ موجود ہیں، جو اس وقت اپنے شیخ طریقت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے محبوب نگر پہنچا ہے۔ یہاں سے ہمیں شادی خانہ جانا ہے، جہاں ہمارے اپنے پیر بھائی کی ایک شادی کی شرکت کرنی ہے، لیکن راستے میں ہی حضرت حافظ صاحب کے متقدین اور مریدین کے ایک مرید کی جانب سے دعوت شو روم کی افتتاح کی دی گئی تھی۔ یہاں پر ایئر کنڈیشن کے شو روم کا حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے دست مبارک سے افتتاح انجام دیا ہے۔ اس موقع پر حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے مریدین نے اپنے شیخ طریقت کے ساتھ اپنی بھرپور محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اب یہاں سے ہم نکلیں گے شادی خانے کے لیے، جہاں پر اپنے پیر بھائی کی شادی میں اپنے شیخ طریقت کے ساتھ ہمیں شرکت کا موقع نصیب ہوگا۔
سبحان اللہ. یہ نکال دو. माशाल्लाह हाफिज़ साहब हमारे दरबार के आए आज हमारे शोरूम पे, बहुत खुशी हुई. पहले महबूब नगर आए थे, उस टाइम पे वादा किए थे हाफिज़ साहब आने का, आज पूरा हो गया. और माशाल्लाह बहुत बहुत खुशी हुई. मरकज़ी खिदमत खल्क़ हैदराबाद कोहिनूर कॉलोनी इन दिनों हिंदुस्तान भर में शिफा के दर से मशहूर हुआ है. ये इस मरकज़ की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्ज़ के लिए शिफा रखी है. लोग यहाँ आते हैं अपनी आंखों में आंसू लिए, अपने दर्द अपने मर्ज़ का शिकार होकर, और इसी मर्ज़ में मुब्तला जब मरीज़ हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया से रुजू होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया की ज़बान को जहाँ मरीज़ों की खिदमत रियाद बनाया है, वहीं अपने क़ुरान का मौजिज़ा हर सुबह मरकज़ खिदमत खल्क़ में दिखा रहे हैं. ऐसी कई मिसालें यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर अनगिनत ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें डॉक्टर से लाइलाज कह दिया था, जो बिल्कुलिया तौर पर जो मायूस हो चुके थे. ऐसे चेहरे यहाँ जब आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके हक़ में खुशियाँ लिख देता है और उनके मुक़द्दर शिफा लिख देता है. नाज़रीन, ऐसे कई हज़ारों नहीं लाखों मरीज़ हैं जो हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया के मरकज़ खिदमत खल्क़ से जुड़ते हैं. अज़ीज़ रकम क़ादिम क़ौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया का ये वस्फ़ ख़ास है कि वो अपने पास आने वाले हर मरीज़ को अल्लाह का मेहमान तस्वुर करते हैं और पूरी दिलजोई के साथ उसके इलाज मुआलजा के सिलसिले में अपनी तवानाइयाँ सर्व करते हैं. आइए हम आपको एक और मरीज़ से आज ऐसे ही मिला रहे हैं जो जिनका ताल्लुक़ महबूब नगर से, और उनका क्या कहना है, उनका क्या मर्ज़ था, आप उन्हीं की ज़बानी से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसे हैं? अच्छे. क्या नाम है? एगुर नवाब जी. मोहम्मद एगुर नवाब. कहाँ के रहने महबूब नगर. वाले? क्या हुआ था? पैर पूरा सड़ गया था ना. जी. हैदराबाद में माहिद्री हॉस्पिटल में था. अचानक सड़ने लगा. नहीं हाँ, तो उसी डॉक्टर पैर काटने के चक्कर में थे. फुंसी थी पहले तो उसी थी. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया मर्ज़ फैलते गया और सड़न की शक्ल अख्तियार की. उसके बाद हैदराबाद में बता हैदराबाद में क्या बोला डॉक्टर, वो यहाँ रूम लेके हैदराबाद में बोला. अच्छा. वो तो हाफिज़ साहब के हैं और मामू सिलसिले थे अनवर साहब, उनके साथ गया था. दो खुद दुआ पड़े, दुआ में शफा हो गया. दो वक्त सिर्फ दो वक्त. उसके बाद हर हमेशा संडे जाते हैं. जी.
जब आपके लिए मर्ज हुआ तो महबूब नगर में भी आपने इसका इलाज हाँ करवाया? करा बहुत डॉक्टर मेहराज अहमद बोल के हैं, जी जी। उनका नहीं बता कई डॉक्टर्स के पास महबूब नगर में इलाज के बाद आप हैदराबाद का रुख करें। हैदराबाद में भी एक दवाखाने में आप जेरे इलाज रहे, एडमिट था एडमिट थे, एक महीना एडमिट था। वहाँ पर आप एडमिट हाँ। रहे, इसके बावजूद भी इसमें कोई फाका नजर नहीं इंजेक्शंस चले, नहीं। कई चीज़ें एंटीबायोटिक्स आपको दिए गए, इसके बावजूद भी आपको कोई नहीं। फ़ायदा नज़र नहीं फायदा आया। नहीं। लेकिन जब हज़रत हाफिज़ साहब के पास आप रुजू हुए तो अल्लाह ने आपको शिफा दी। जी, सिर्फ दो ही मुलाकात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुकद्दर में शिफा दी। कि कहाँ आपका पैर ये यहाँ तक सड़ चुका था? हाँ यहाँ तक चला जाता है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से जब लोग थक हार के पहुँचते हैं मरकज़ खिदमत खल्क़ को, जहाँ उनकी आंखों में आंसू होते हैं और अपने मर्ज़ को लेकर उनके दिल में एक तड़प होती है कि काश कोई ऐसा अल्लाह का बंदा मिल जाए जो उनके इस मर्ज़ को कम कर सके, ख़त्म कर सके। लेकिन जहाँ पर इनकी कोशिशें होती हैं वहीं अल्लाह तबारक व तआला भी इनकी मदद करता है। और ये मरकज़ खिदमत खल्क़ से जब रुजू होते हैं तो हज़रत हाफिज़ साहब दावत बरकातुहुल आलिया की चंद फूंकों में उन्हें अल्लाह तबारक व तआला शिफा नसीब करता है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 वक्त ही में ये साहब महबूब नगर से हैदराबाद आए और हैदराबाद में हज़रत हाफिज़ साहब के पास रुजू हुए और वहाँ 2 मुलाकातों में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हज़रत हाफिज़ साहब की फूंकों में वो असर देते हुए इनके मर्ज़ को ख़त्म किया है। हेलो भाई थोड़ा हटिए भैया, ज़रा साइड दीजिए भैया, ज़रा साइड। थोड़ा पीछे से हटिए आप लोग। लेफ्ट ले लो। पीछे लेफ्ट साइड साजिद। हाँ इधर भी आइए, इधर साइड आइए। मौलाना, मैं काफ़ी दिनों से हज़रत से मुलाकात करने का जो है ना ख्वाहिशमंद था, लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मस्जिद हसन बाला नगर का मैं इमाम हूँ। तो जैसे मैंने नमाज सलाम फेरा तो एक जहन में एक ख्याल आ गया कि मेरे शायद हज़रत आ गए हैं या आने वाले हैं। पहले से आप पहले से, हालांकि मैं सब यूट्यूब में मैं देखता हूँ हज़रत को, तो लेकिन एक अचानक सलाम फेरने के बाद में ख्याल आ गया मेरे को कि शायद हज़रत आए हुए, हाफिज़ साहब भी आए हुए हैं। वरना मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन जो है ना सुन्नत पढ़ के निकलता हूँ घर के लिए, महबूब नगर के लिए। जब बाहर सुन्नत पढ़ने के लिए निकला तो मजमा काफ़ी बढ़ता रहा। तो उसके बाद में हमारे जो मस्जिद के जो जिम्मेदार साजिदा में से उस्ताद है वो मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब, वो बोले ये बड़े हाफिज़ साहब आए हैं। तो मैं बोला कौन बड़े हाफिज़ साहब? हाफिज़ अब्दुल मुख्तदिर साहब। हाँ आए हैं। मैं बोला अब तो मिल के जाऊँगा हज़रत से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और दिली इत्मीनान हुआ हज़रत से मिल के, और बड़ा अच्छा सफ़र रहा मेरा। वो भी इत्तेफाक से महबूब नगर में आ रहे थे हज़रत मेरे अपने शहर में, तो बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप में कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी कर दे और हज़रत का साया तादिर कायम व दायम रखे और हज़रत को हम सबको बुरी नज़र और हसद से बचाए।
बस आज तो सबसे यही दुआ करनी चाहिए कि नज़र बस से बचा दे और बचाए। जिस तरीके से हाफिज साहब से पहले से मुलाकात का बिल्कुल बड़ी जो है ना, जब से मैं हज़रत के जो प्रोग्राम यूट्यूब में देखता था, मजालिस वगैरह देखता था, तो रमज़ान में तरावी का भी जो मसला था वो भी मैंने देखा, तो बड़ी ख्वाहिश थी दिल में कि मैं हज़रत से एक बार मुलाकात करूं। लेकिन मेरा एक मनसब ऐसा है कि इमामत का कहीं जाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, तो लेकिन आज ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने खुद मुझे जो है ना हज़रत से जो है ना मिला दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जो मिलने के बाद आपको एकदम जो आपकी ख्वाहिश थी वो बिल्कुल पूरी हो गई। बिल्कुल हज़रत से मिलने के बाद मुझे एक अजीब इत्मीनान हो रहा है, और हज़रत से काफ़ी देर बात की हुई यहाँ पर, तो यानी कि हज़रत से मैं अभी ऐसा हो गया है कि काफ़ी जो है ना ऐसा लग रहा है कि जब बहुत पुराना मैं हज़रत से का मुलाकात की पहली बार मुलाकात में मुझे महसूस होने लग रहा कि शायद हज़रत से मेरी मुलाकात बहुत पहले से है। बहरहाल अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान वो है। मुलाकात जो हज़रत की मुलाकात के साथ ही वो जो शफ़क़त और मोहब्बत जो आप हज़रत के अंदर देखते तो आप कैसा लगता है कि बहुत ज़माने से मुझे जानते हैं और मैं बस यही कि जो हज़रत से जो मुलाकात हुई मेरी बात तो कि एक तो ये होता है कि आदमी जब नया किसी से मिलता है पहली बार, तो एक बेइल्तिफ़ाक़ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जैसे करके एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि वो आजकल जो जैसा होता है कि भाई बड़े हो गए ऐसा, तो वो चीज़ मैंने हज़रत में मैंने नहीं देखा। हज़रत तो बिल्कुल ऐसा क़रीब कर रहे हैं मुझे कि जैसा मुझे कई वर्षों से जानते हैं, और मैं भी हज़रत के बिल्कुल इतना क़रीब हो रहा हूँ कि जब आदमी क़रीब हो गए एकदम कोई रोक टोक नहीं, तो मैं भी तरह इतने क़रीब हो रहा हूँ हज़रत की, तो मुझे एक बड़ा दिली जो है ना यानी कि खुशी महसूस हो रही है कि हज़रत में बहुत सादगी। तो हज़रत का एक जो चीज़ मैंने देखा कि मिशन सबको लेके एक प्लेटफॉर्म पे लेके चल, हज़रत की एक चीज़ मैंने थोड़ी देर में महसूस कर लिया कि सब अकाइद को साथ में लेके चलते हैं, कि सबको एक ही पैगाम है, दीन की दावत देना, दीन की तरफ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है ना, जो शरीयत जो तरीक़ा है उसकी तरफ बुलाना, हज़रत का यही मंशा है। मैंने अब थोड़ी देर के अंदर ये महसूस कर लिया है कि सब मसालिक को साथ में लेके एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है। उमन आप साहब की बहुत ज़्यादा मकबूलियत अल्लाह ताला ने आप साहब को लेकिन इसके बावजूद जैसा कि आपने कहा कि आप साहब के पास कोई भी ऐसा तकब्बुर अनानियत या फिर दबदबा रोब इस तरीके का कोई माहौल हाफिज़ साहब के पास नहीं, बिल्कुल। और यही चीज़ है कि हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह ताला ने पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी जो मकबूलियत दी है उसी का यही नतीजा है कि जो भी नया शख्स आता है हाफिज़ साहब के पास वो एक बार जब मिलता है तो फिर बार बार मुलाकात करने का इख्तियार करता है, जैसा कि आपने कहा कि मैं पहली बार मिला था ऐसा कि बहुत ज़माने से फरमाया आपने। तो इंशाल्लाह जो है ना हमारी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हज़रत से हम हमेशा जो है ना राब्ते में रहेंगे, कुछ ना कुछ तरीक़ा बना के जो है ना जो कुछ भी टाइम जब भी वक्त मिले हज़रत से जो है ना हम मिलने की जो है ना कोशिश करेंगे और राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह खैर, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात की, बहुत खुशी हुई कि आपके पास हम आपके शहर में आ रहे थे, इत्तेफाक से आपकी मस्जिद में नमाज़ इशा हुई, हज़रत से आपकी जो मुलाकात हुई, फिर अचानक आपको ये इलामी कैफियत होना कि हज़रत आज यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल ये तमाम चीज़ें एक साथ मिलते हैं तो ये अल्लाह का फज़ल ही होता है। बिल्कुल अल्लाह का बहुत बड़ा नेक फज़ल है। शख्सियत से किसी को मिलवाना होता है तो इस तरीके के मामलात होते हैं, और फिर वहाँ से फिर हज़रत ने जो आपको यहाँ पर हम शादी में आ रहे थे, फिर हज़रत ने आपको शादी में आने की भी दावत दी, क्योंकि एक मुरीद की दावत थी, एक जवानी बेटे की दावत है, इससे फिर आप हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका।
नको जाऊ. एक सेकंड चलिए भाई थोड़ा साइड दीजिए भैया. साइड चलिए चलिए जावेद भाई. Selam. Selam.